So hey guys, it's me Sachin, and today we are going to discuss a very good and beneficial topic, that which life is better for the students, which guidance is better for the students, in which a student get all the development things for their bright futures under the nourishment of their parents or under the guidance of the hostel life. So let's take another views, another opinions. So hello mister, please come to this side. So it is a very impactful discussion that we are going to proceed ahead, guys. So hello sir. Hello, What's your name? May I have your good name please? Mohit Singh. Okay sir, so please focus on camera sir. Okay. So hello sir, Mohit Singh. Yeah. So how are you feeling today? Yeah, good. Are you comfortable sir? Yeah, I'm comfortable now. So sir, there is a topic that is none than that which life is better for all of the development of the students under the nourishment of their parents or under the guidance of hostel life. No, I would like to share one thought, and my thought is, if you live under the parents, it will be good for your life, and if you live under the hostel, some teachers, then even it will be good. It will be good, but my suggestion, my advice is that you should live under the parents, because parents make help make a career. Yeah, parents helping make a career. So hey guys, so Mohit Singh shared a very beautiful point of view that in order to get all our development, we need to take the support of our parents. Am I right, Mr. Mohit? Yeah. So guys, as you know that parents supports us in any condition, in any situation. So according to Mohit, hostel life is not better than the nourishment under the parents. Am I right? So guys, I am strongly in the favor of the hostel life. That as I can say that hostel life is better for the all over development of the students. Why? Let me prove guys that how it happens, how it gives a good result. Guys, as we know that environment play a very beautiful and important role in our day-to-day life. Either we need to create our bright future or anything we are to do. As we know that here is a proper environment, due to that we are making video and all, and we are getting content as well. Okay, so similarly in hostel life we get environment that is totally good, that is totally pre-scheduled, that if you are going to spend your life in hostel, at that time you will have to do all the things systematically. That's why I am favoring the hostel life. So जानेंगे अभी विपिन कुमार रॉय से ओपिनियन हम लोग लेने वाले हैं कि कौन सा लाइफ ज़्यादा बढ़िया है, या जो हमें जो गाइडेंस मिलता है हमारे पेरेंट्स के साथ में घर में रहकर वो ज़्यादा बढ़िया हमारे विकास के लिए, या फिर वो लाइफ जो हॉस्टल लाइफ में मिलता है, सारा कुछ बनाया और हम लोग दूसरे के अंडर में, गाइडेंस के अंडर में होते हैं. तो कौन सा लाइफ आपको अच्छा लगता है? अगर हॉस्टल से बेहतर घर में गाइडेंस मिल रहा है तो घर ही बेटर है, फैमिली के पास ही रहना बेटर है. अगर वहाँ से ज़्यादा मटेरियल अच्छा मिल रहा है, जैसे यहाँ लैब भी है, हॉस्टल भी है, हॉस्टल में भी गाइडेंस अच्छा किया जा रहा है, तो यहाँ भी अच्छा है, पर ज़्यादा बेटर होगा गार्जियन के पास ही रहना. ज़्यादा बेटर होगा गार्जियन के पास ही रहना. देखिए भाई के अनुसार एक पॉइंट आया कि द लाइफ दैट वी स्पेंड विद आवर पेरेंट्स दैट इज़ मोर एंड फार बेटर देन द हॉस्टल लाइफ. ओके, मतलब कि हॉस्टल लाइफ से ज़्यादा बढ़िया है. लेकिन हम लोग अभी कुछ लोगों का और पॉइंट जानेंगे, एक पॉइंट कि कौन सा लाइफ बेटर है. क्योंकि चलिए तो मैं अभी थोड़ा बहन लोगों का ओपिनियन को जानते हैं कि मतलब कौन सा लाइफ ज़्यादा बढ़िया है. ठीक है, कि विच लाइफ इज़ बेटर फॉर ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर हॉस्टल लाइफ और द guidance under the parents. So we are going to know about the opinions of others. So ma'am, may I know your name please?
आपका नाम जान सकता हूँ? स्वीटी प्रिया। ओके स्वीटी प्रिया। सो आपको कौन सा लाइफ अच्छा लगता है स्वीटी, कि मतलब आपका पेरेंट्स ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके करियर को मतलब कि अचीव करने में, कोई भी गोल आपका जो भी लक्ष्य होगा? मेरे हिसाब से पेरेंट्स के पास रहना सही होगा, क्योंकि हम मतलब पेरेंट्स से दूर नहीं रहेंगे तो हम जहाँ भी जाएंगे तो पेरेंट्स की नज़र में रहेंगे, उनके गाइडेंस के नज़र में रहेंगे। और मतलब डिपेंड करता है, क्या बोलते हैं, फैमिली, जैसे कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसको प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, तो वो अपना हॉस्टल में जाके रह सकते हैं। मगर जिसके एक दो मतलब भाई बहन है वो आराम से रह सकते हैं, फिर जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स के पास रह करके अब लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके और फिर वो मतलब एजुकेशन ले सकते हैं। थैंक यू मिस प्रिया। देखो भाई, मैं अकॉर्डिंग टू प्रिया दैट पेरेंट्स, द गाइडेंस अंडर द पेरेंट्स दैट इज very better, far better than the hostel life according to her experience, and I appreciate it, I like it, because we know that she was talking about the joint family, कि अगर आपके पास ज्वाइंट फैमिली है तो आपके पास इन्वायरमेंट नहीं होगा, आपको पढ़ने में डिस्टर्ब हो गए हर समय, है ना, कि हर प्रकार से कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो गया आपकी पढ़ाई में। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका शॉर्ट फैमिली है तो आप अपना घर में भी इन्वायरमेंट मिल जाएगा, आप वहाँ पे रह सकते हो, आप पेरेंट्स से अटैचमेंट हो, आपके लिए सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और फिर इन्होंने एक चीज़ और बताया, अगर आप ज्वाइंट फैमिली से हो तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इनके अनुसार ये था। मैं कुछ लोगों और से जानूंगा ओपिनियन कि कौन सा लाइफ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे आइए भैया। हेलो मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? प्रीति राणा। ओके प्रीति राणा। सो मैम, आपके अनुसार क्या लगता है कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के पूरे डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसका गोल हो, मैम प्लीज़ इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसका गोल से रिलेटेड हो, लक्ष्य से रिलेटेड हो, या कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, तो उसके पूरे विकास के लिए कौन सा लाइफ ज़्यादा अच्छा है, या वो अपने पापा मम्मी के गाइडेंस में रह करके पढ़े तो, या फिर हॉस्टल में जाके पढ़े बचपन से ही? तो हॉस्टल में रह के पढ़े वही अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में रहने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। ओके, वाओ, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, दैट सैक्रिफाइस दैट इन्होंने बोला कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऑब्वियसली यार, सबको लगता है कि अपने पेरेंट्स के पास ही रहे, ठीक है, उनके हाथों से बना बनाया खाना खाएं, या तो फिर सारे जो सुविधा मिलते पेरेंट्स से हमें शायद हॉस्टल में नहीं मिलती है। ये बात बहुत ही हद तक सच है, ठीक है, कि हमें पेरेंट्स के साथ तो रहना बहुत अच्छा लगता है सबको, और सबको अपने बच्चों को रखना, लेकिन हमें कुछ पाने के लिए सैक्रिफाइस, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या क्या नहीं पाते घर में, क्या मतलब माहौल नहीं पाते हैं या फिर कुछ नहीं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। घर में रह के तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मतलब कि आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट नहीं पाते, लैक ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लैक ऑफ इन्वायरमेंट, क्या आपको डिसिप्लिन मिलता है आपके घर में? मिलता है। जैसे हम सोचे कि अगर हम रह के घर में पढ़े तो क्या हम डिसिप्लिन को पे कर पाएंगे घर पे, कि तो टूट जाएगा? कर पाएंगे, लेकिन उतना भी नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब कि यहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन नहीं मिलेगा जो आपको हॉस्टल लाइफ में मिलता है ना। वहाँ पे सारा चीज़ पहले से प्री प्लान्ड होता है कि कैसे क्या करना है, कब पढ़ना है, कितना बजे उठना है, कौन सा एक्टिविटी कब करना है ना। तो ओके, थैंक यू मैम। ओके, इधर आइए। ओके, शॉर्ट नेम चंपू। ओके, सो चंपू, यू हैव अ वेरी quite interesting task, that which life is better for the all our development of the students, under the nourishment of the parents or under the guidance of the hostel life? कौन सा लाइफ आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, मतलब बच्चा का विकास के लिए, ठीक है? देखिए, साफ साफ तो ये कहना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो, अगर स्टूडेंट के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो वो पहाड़ में भी रहकर पढ़ाई कर सकता है। घर जाते हैं तो मम्मी खाना बना देती है, तो हॉस्टल से अच्छा लगता है कि चलो यहाँ बना बनाया मिल रहा है, खा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ हॉस्टल आता है तो पूरा दिन कुकर मांजने में जाता है। वाओ, दैट्स वेरी गुड पॉइंट गाइस, दैट एक्सप्रेस दैट अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है ना, तो आप पहाड़ों में भी रहकर पढ़ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये एंशिएंट टाइम से कोरिलेट कर रही है। एंशिएंट टाइम में गुरुकुल सिस्टम था, आप लोग सभी लोग तो जानते ही होंगे, मैथोलॉजिकल में रामायण महाभारत, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे ना, है ना, तो वो पहाड़ों में ही रहते थे, उनके पास उतना फैसिलिटी नहीं था, फिर भी वो पढ़ रहे थे ना। तो इनके अनुसार ये भी कहना एक हो सकता है कि अगर आपके अंदर कुछ भी जुनून हो तो कर सकता है। और बहुत सी आप देख सकेंगे होंगे कि हाल ही में बहुत सारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जैसे मैं दिव्या तनवर की बात करूँ, मैं मैम दिव्या तनवर जो